Good afternoon, everyone. I'm Kshitij Kant, and you are watching Pressman Times. Right now, in state capital of Uttar Pradesh, Lucknow, and I'm standing inside Kisan Bazaar. You can see here again this shop. I will tell you something about this shop. You can see the equipment over this banner. You can see behind the ear it is written BTE Mini. Behind the ear. In bracket it is written Mini. Receiver in canal RIC. I don't know anything about it. Mr. Doctor, whose name is Pranav. Yeah. Pranav is seated along with me, and he has opened this clinic first time in Uttar Pradesh, in Lucknow. We will have few words with him, and we will try to know how he helps his patient with these equipments and what these equipments is all about. Sir, first of all, I will welcome you in Pressman Times. Thank you so much. I just want to know what these equipments is all about and how you treat your patients. Okay, so basically my name is Pranav and I am just started my own venture here in Lucknow for the first time, name as Here Again. Okay, so I am an audiologist and speech language pathologist. So what we do as a hearing care professional, we diagnose and do the assessment and the management of all the population. It may be a geriatric, it may be a children. Yeah. So there are three aspects of our profession, if I will tell. One is neonatal hearing screening, in which we do a test called OAE, that is autoacoustic emission, which detect if the children, when they just born in the hospital, it comes under a program that is called universal hearing screening. So it detects if the child is hearing or not. So if we detect in early stage itself, then we can diagnose it. If the child is not listening, then we can go for a protocol which is government already have. That comes under ADIP scheme, and also if the patient can afford, they can also go by themselves also. Sir, I just stop you here. How parent come to know that his child is not hearing properly and he has deafness? That's what I'm telling. If the child is not hearing, then he can't speak. Yeah. Okay, but till they detect it that the child is not hearing it, it may be too late. And sometimes what happens in our generation, like the relatives say, it's okay, some children speak late, so they are not able to detect it. That's why government introduced this, and they just bring the universal hearing screening program, which includes all the children must go a hearing test within 24 hours of birth, so that we can just detect it. If the children is already having, if the hearing is fine, then it's not a problem. If it is a problem, then we can go ahead with the solution. So many stages came. You have told me that how you detect deafness in children. Yeah. Within 24 hours. Yes. If we'll talk about more than that age, more than 5 years of age, more than 18 years of age, there are many stages. Exactly. So we have lot of tests. So in as I told already, in children's stage we directly go for something which is done automatically. But when it comes to adults, as you said, if the children is 5-year-old, or if the like somebody is around 10-year-old. So hearing loss can be two types. It can be genetic, it comes from parent to children, or it can be congenital, means it happens something like if the children is falling under TORCH complex, like high risk register, if premature birth or something complication happened during the delivery, then also it can happen to the child. So if that happens, then there are other tests like Puritan audiometry. We can go for brainstem evoked response. There are other tests which we can perform on the children, and we can detect the severity of the loss. It may be 100%, it may be 50%, it may be 40%. According to that, the assessment and the management will be done on the children. So you have started this clinic first time in Uttar Pradesh, in Lucknow. Yeah. You were doing, were you doing this same business over some other states or cities? Yeah, we are already having our clinics in Gurgaon, Noida, Faridabad, and also in Ahmedabad. So now we come to UP because it's a huge state. You can say it is one of the biggest state in all over the India, and it have lots of population. And so we want to just provide our services, because it's a life-changing moment for somebody when he is not able to hear, and suddenly you can bring the hearing to him, whether it's a children or an adult. If the children is not speaking, so it's a big headache for people with, or even the parent, the relatives, that how he is going to go to school, how he is going to perform in well, because if you're not listening, how you're going to speak.
You have started with government. That government is doing some programs for the person who are deaf, and you have started this clinic. This clinic is working under government. It is No, your it- personal. no, it's a personal venture, okay. But there are some schemes which government provides, so we can utilize those schemes. If the patients are coming, like if somebody is not affording, everybody cannot afford a cochlear implant. So if we can detect it in early childhood, like at the age of 1 year or 2 year, we Because can at that time, if any person is not Then he is- cannot afford and he is poor, you will we you can will help him facilitate with the government that scheme. Exactly. We can just tell that, okay, you can go to a DIP scheme or you can go to the government hospital. You can just issue your certificate and we can register your name so that they can get a free benefit of cochlear implant. They don't have to pay to us or to government because it's already for them already reserved. So they have to just go under a protocol which they are not aware of. So if they are coming in time, so we can help them and it will change their child's life. So many students would also be watching you right now. I just want to know that one of the most students having university, if we'll talk about Dr. Sakuntala Mishra National Rehabilitation University, it is one of the most popular university in Asia and one and only university who has maximum number of students as disabled. How you work? How will you work from them? And have you done any program in that university? No, as of now, we have not conducted any program over there. But yes, Sakuntala University have our course called Bachelor in Audiology and Speech Language Pathology. So there are children coming up with the degree from there. So once they are coming up, we can hire them or we can tie up with them or we can even conduct a camp there so that when you already said they have already lot of patients who are already suffering with lots of disability. So we can go over there and we can arrange something for them. So At till now last- we haven't started yet, but we are planning to do that. In future? Yeah, sure. What message you will give to all the patients who are going to come and visit your here again, which is in Kisan Bazaar, and it is opposite to one of the richest places you have opened this place? So the main motto is better hearing for everybody. So I want everybody to hear what the near and dears are speaking. So that is our first motto. So if for some reason or some factor if they are not able to listen it, so we are there to help them. तो अभी आप डॉक्टर साहब को सुन रहे थे हियर अगेन क्लिनिक के जस्ट बाहर बैठा हुआ हूँ और यहाँ मेरे साथ यहाँ पे जो चीफ गेस्ट हैं यहाँ पे अनीस मंसूरी साहब और खुर्शीद आलम साहब बैठे हुए हैं. जानूंगा क्या कुछ मैसेज देने वाले हैं और यहाँ पर क्या कुछ कहेंगे इस नई क्लिनिक के लिए. सर आपका सर स्वागत है. धन्यवाद. मैं प्रणव जी जो एमडी हैं जो यहाँ पर आज जिस इनॉग्रेशन में हम लोग आए हैं और सेंटर के एमडी हैं, इनके बुलावे पर आने का मकसद ये था कि यहाँ पर हमको एक नई चीज़ देखने को मिली जो अभी तक उत्तर प्रदेश में इस तरह चीज़ें नहीं थी. और ख़ास तौर से जब यहाँ के तमाम पेशेंट जो है दिल्ली, मुंबई और बाहर भी जाते हैं, जब उनको परेशानी होती है तो बेसिकली जो ईएनटी से संबंधित चीज़ें हैं बच्चों के लिए, जैसा कि आपने इंटरव्यू में भी सुना, डॉक्टर साहब ने आपको बताया, प्रणव जी ने, तो वो सारी ट्रीटमेंट यहाँ होंगे. और सारे हॉस्पिटल में जो लोग बाहर भेजते हैं यहाँ पर लोग आएंगे और उनका तमाम पैसा भी बचेगा बाहर जाने का जो है. मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेंटर कामयाब रहेगा हियर अगेन के नाम से जो एमडी साहब प्रणव जी ने खोला है, और ये बहुत कामयाब रहेगा और यहाँ की जनता को इस सेंटर से काफ़ी लाभ भी मिलेगा. और गवर्नमेंट से तमाम जो योजनाएं हैं और हमारे गरीब तबके के लोग उन योजनाओं का लाभ पा करके तो गरीब से गरीब बच्चा भी यहाँ अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करा सकता है. यहाँ पे जिस तरीके से तुतलाने वाले बच्चे, हकलाने वाले बच्चे, उनकी भी थेरेपी दी जाएगी. कान से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, बच्चा कम सुनता है, तो ये सारी चीज़ें ये करेंगे थेरेपी के ज़रिए. तो मुझे उम्मीद है कि एक लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ये पहली बार आगाज़ हुआ इस तरीके से, और उम्मीद है कि पूरी तरह से कामयाब होगा और लोगों को आसानी होगी लखनऊ में इलाज कराने में. बिल्कुल बिल्कुल. खुर्शीद जी आपसे बात करूंगा. गुड़गांव में चल रहा था, बाहर तमाम प्लेसेस पे चल रहा था, अब राजधानी लखनऊ में क्या कुछ नया देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, यहाँ के जो एमडी हैं प्रणव जी, इनके बुलावे पे और हमारे छोटे भाई हैं एजाज जी, नितिन जी, इन लोगों ने इस सेंटर को शुरू किया है. और ये एक ऐसा सेंटर है
कि यहाँ लोगों को सुविधाएं के साथ साथ में इलाज के लिए जो बाहर जाना पड़ता था वो अब लोगों को बाहर नहीं जाना है। दूसरी चीज़ ये है, लोग गवर्नमेंट के साथ मिलके भी कई स्कीमों पे काम कर रहे हैं और उससे रिलेटेड लोगों का जो बहुत अधिक धन खर्च होता था तो वो धन अब खर्च नहीं होगा और गरीब लोगों का इलाज भी लखनऊ के अंदर संभव हो सकेगा। तो इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और हमारे माननीय मंत्री जी जो चीफ गेस्ट है इस कार्यक्रम के, और पूरी तरीके से सारी चीज़ों को समझा उन्होंने और इन लोगों को आगे गाइड भी किया। अच्छा, आपसे बात करूंगा फिर से, किस तरीके से आप लोग हेल्प करने वाले? गवर्नमेंट की तमाम स्कीम्स तो वर्क होगा, आप लोग समाजवादी हैं, समाजवादी इसमें किस तरीके समाजवादी लोग हेल्प करने वाले? देखिए, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और जो बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं वो हम लोग पास मदद के लिए आते हैं और अपनी बात कहते हैं। तो मैं तो यही उनको सलाह देता हूँ कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है इसका फ़ायदा उठाइए। हम एक बेहतर प्रचार और प्रसार का काम कर सकते हैं प्रणव जी के लिए और एजाज जी के लिए कि लोगों तक जहाँ तक ये नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ तक हम इनकी बात पहुँचा सकते हैं। तो ये मैं कहूँ कि मैं इनका अच्छा एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ। अच्छा एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे, क्षेत्र में आप भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं? देखिए, ऐसा है, मूल जो लोगों की जो है शिक्षा और स्वास्थ्य, यही दो चीज़ें हैं। इन पे अगर गवर्नमेंट पूरी तरीके से काम करे या अपनी योजनाओं को लागू करे तो गरीब तबके के लोगों को इसको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। और जैसा कि मैं देखता चला आ रहा हूँ कि हमारे एजाज भाई, नितिन भाई, ये लोग काफ़ी सारा वर्क करते रहते हैं, गरीब बस्तियों में जाते रहते हैं, कैंप लगाते रहते हैं। तो इनकी जो मेहनत है उसको देख करके हम लोग इनके साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इनसे जो भी हम लोगों से मदद हो सकेगी हम लोग बराबर करते रहेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर और भी टीमें हैं जो राजधानी लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग क्षेत्रों से आई हैं। और दूसरी बात कर लूँ, उत्तर प्रदेश के बाहर से भी यहाँ पे टीमें हैं। एक एक करके सभी से बात करूंगा और जानूंगा क्या कुछ कहना है यहाँ पर आज जो ये हेयर अगेन जो स्टार्ट हुआ है इसके बारे में। मैम, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ, आपका क्या कहना है? मैम, आप आई कहाँ से? मैं दिल्ली से आई हूँ और अभी करंटली हम एन ऑडियोलॉजिस्ट मयूम हॉस्पिटल में। सो हम लोग ने स्टार्ट किया है हमने लखनऊ में। जिन लोगों को सुनाई की दिक्कत होती है तो उनकी जांच यहाँ पे होएगी। उनको जो भी तमाम दिक्कतें आती है सुनाई से रिलेटेड तो उसको हम लोग यहाँ पे डायग्नोस करते हैं। उसके बाद हम उनको हेयरिंग एड के लिए आगे फर्दर रेफरल्स देते हैं एंड फिटिंग वगैरह करेंगे। एंड और जो बच्चे जिनको बोलने की दिक्कतें होती हैं, क्लटरिंग का इश्यूज होता है, रेट ऑफ स्पीच फास्ट होता है, उन सबकी तमाम थेरेपीज़ यहाँ पे दी जाती हैं। बिल्कुल। मैम, आपसे बात कर ले, आप कहाँ से आई हैं? मैं उड़ीसा से हूँ, यहाँ नोएडा में काम करती हूँ। मैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है। तो हम बेसिकली हम यहाँ पे उन बच्चों के साथ डील करते हैं जो बोल नहीं पाते हैं। पेरेंट्स को पता चलता है कि ये डिले हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो, जेनेटिकली हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, उसमें से बच्चों को दिक्कत हो रही है तो हम उसको बिहेवियर से पता करते हैं कि बच्चे का ये दिक्कत है। उसके हिसाब से हम थेरेपी प्लान सेट करते हैं। उनको ट्रीटमेंट इन द सेंस हम कुछ महीनों के लिए हमको थेरेपी देते हैं उनको और उनका बिहेवियर भी धीरे धीरे चेंजेस आते हैं उनसे। और बहुत सारी मतलब जितने भी बिहेवियर्स आते हैं उनका तो हमको धीरे धीरे पता चलता है कि इस सेटअप से मतलब ये वाला थेरेपी हम उसके लिए करेंगे तो ये इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो ऐसे कुछ महीनों के लिए गोल सेट करके इम्प्रूवमेंट ला देंगे। अच्छा सर, आपसे बात करें, कितना समय लगता है ये पूरे प्रोसेस पे? दोनों मैम ने बताया। कौन सा प्रोसेस? जिस प्रोसेस के बारे में बात हो रही है ये डिपेंड करता है। पहले नाम अपना बता दो, आए कहाँ से? अभिषेक मिश्रा फ्रॉम गुड़गांव जी। मेनली ये डिपेंड करता है चाइल्ड की कैपेसिटी और डिमांड के ऊपर। कोई बच्चा जल्दी गेन कर लेता है, कोई बच्चा बहुत टाइम लगाता है लेने के लिए। जैसे कोई बच्चे डिपेंड करता है कि डिलेड जो होते हैं, डिलेड स्पीच लैंग्वेज जो होते हैं उनको 4 to 5 मंथ एज में उनको आ जाता है चीज़ें। लेकिन बाकी जैसे ऑटिज़म हो गया, आईडी हो गया, अब डिपेंड है सीवियरिटी कितनी है उसकी। जितनी सीवियरिटी होगी उस हिसाब से उसका उतना टाइम लगता है। डिपेंड ऑन सीवियरिटी एंड द चाइल्ड की कैपेसिटी एंड डिमांड के ऊपर वो डिपेंड करता है और कितना जल्दी वो गेन करता है चीज़ों को। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आपका नाम? हेलो, माय सेल्फ साइकिया हूँ। मैं नोएडा सेंटर में काम करती हूँ। अभी लखनऊ में नया क्लिनिक हमारा खुला है इसलिए हूँ और मैं नोएडा में एजिस की स्पेशलिस्ट बात करती हूँ। इनॉग्रेशन में आई है, यहाँ वर्क भी करेंगी? नहीं, ये तो जस्ट मैं इनॉग्रेशन पे आई हूँ पर मैं काम करती हूँ नोएडा में। अच्छा मैम, नोएडा में फिर एक्सपीरियंस कुछ बता दें। वहाँ पे जो पेशेंट्स आते होंगे तो किस तरीके से आप पेशेंट्स को डील करते होंगे और किस तरीके से कितना समय लगता है और कितना टफ होता है इसको हैंडल करना?
ऑब्वियसली टफ तो होता है क्योंकि चलिए मैम आपसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? रश्मि। कहाँ से आए हैं? मैं गुड़गांव से। क्या कहूँ, जो प्रश्न उनसे पूछा था उसी प्रश्न का जवाब आप दें। सर हम लोग एक एज अ टीम काम करते हैं जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं हमारे साथ में, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं एंड देन दे रेफर टू अस, ठीक है, स्पीच थेरेपी के लिए। तो जो बच्चे होते हैं स्पेशल नीड्स के, मतलब जिनको डेवलपमेंटल डिले होता है, माने कि स्टार्टिंग से ही बच्चा सर संभालना लेट सीखा है, चलना लेट सीखा है और बाकी सब कंट्रोल्स वगैरह बच्चे के लेट आते हैं, तो बच्चे अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उस सब चीज़ के ऊपर में हम काम करते हैं। बच्चे के कॉग्निशन के ऊपर में, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, सोशल नहीं है, अपने पीयर ग्रुप के साथ में बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करता है, अकेला रहना पसंद करता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर में हम बच्चों के साथ काम करते हैं। हमारी ग्रुप थेरेपीज होती हैं सेम एज के बच्चों के साथ में। तो बेसिकली हमारा टीम वर्क रहता है जहाँ पे हम एज अ टीम काम करते हैं। अच्छा मैम, आपसे लास्ट में बात करूँगा। बच्चों के लिए तमाम लोगों ने बात की, हम बात करना चाहते हैं एडल्ट मोर देन 18 या फिर जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हेयरिंग लॉस स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ इस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? पहले आई कहाँ से नाम? जी मेरा नाम ज्योति पांडे है, मैं गुड़गांव ब्रांच से आई हूँ, मायोम हॉस्पिटल। तो इसमें हम बहुत कुछ कवर करते हैं और ये बच्चों के लिए तो स्पीच वाला आ गया आपका, ठीक है। और इसमें और जो मैम ने नहीं आपको बताया वो और भी है कि इसमें और भी पॉपुलेशन हम कवर करते हैं, लाइक ऑटिज़म, और फिर एडल्ट में स्ट्रोक पेशेंट होते हैं उनका अफेजिया, एप्रेक्सिया, बहुत सारा ये सब है, सब वो सब हम कवर करते हैं और थेरेपी देते हैं। फिर वॉइस के पेशेंट भी हमारे पास आते हैं, उनका भी हम कवर करते हैं, वॉइस थेरेपी देके उनका भी थेरेपी चलता है। जैसे वो इम्प्रूवमेंट लाते हैं उस हिसाब से हम करते हैं और ये बेसिकली डिपेंड करता है, वो हम ये नहीं बता सकते कि कितना जल्दी हम कवर कर लेंगे, आपका 2 दिन 3 दिन या 1 महीने में हम ठीक कर देंगे। वो बेसिकली जो पेशेंट है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से हमारे बात को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और फिर लाइक अगर आप जैसे ओई और बेरा भी है हमारे यहाँ पे, लाइक आप पहले अगर करवा ले तो अभी तो सबको नेसेसरी है करवा ही लेना। अगर आपका जैसे बेबी बर्थ हो रहा है, आप स्क्रीनिंग करवा लो, हियरिंग टेस्ट लाइक ओई है, आप करवा लो, तो फिर वो आप डिटेक्ट कर सकते हो कि बच्चा सुन पा रहा है नहीं सुन पा रहा है। वही किसी ने उसको डिले कर दिया, बाद में चल के उसको पता चला, तो वो फिर एक ही है कि कॉक्लियर इम्प्लांट होगा, नहीं तो फिर हियरिंग उसका फिर से टेस्ट होगा। जैसे उसका वो थ्रेशोल्ड आएगा उस हिसाब से हम उसको हियरिंग अगर लग सकता है तो लगाएंगे, उसके हिसाब से उसको। अब मान लो कि वो पहले से सुन नहीं रहा था तो वो बोल नहीं पा रहा है, तो उसके बहुत सारे साउंड्स हो गए, बहुत कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो उसके लिए AVT चलता है, ठीक है, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। उसमें हम पहले साउंड्स सिखाते हैं, साउंड्स के हिसाब से फिर वर्ड्स फॉर्मेशन, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन, और ऐसे करके कुछ महीनों में, कुछ साल भी लग जाते हैं, फिर वो जो भी है एडल्ट वो बोलना स्टार्ट कर देता है। ये सब हम कवर। अच्छा एक चीज़ और पूछ लें, आपका ये जो हेयर्स अगेन जो सेंटर है ये बाकी सेंटरों से अलग कैसे है? जी ये बाकी सेंटरों से सर डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय आवर सेंटर। तो हम क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं सर, हम क्वांटिटी के ऊपर काम नहीं करते, जिस वजह से आप इसलिए दूसरे सेंटर से हम अलग हैं। यहाँ पे इस एक ही छत के नीचे आपको तमाम सर्विसेज मिलेंगी। दूसरे सेंटर पे आपको होता है एक जगह आपने कॉक्लियर इम्प्लांट करवाया, फिर आप मैपिंग के लिए किसी और सेंटर पे जा रहे हैं, थेरेपी लेने के लिए किसी और सेंटर पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही छत के नीचे बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। तो दिस इज वन फैक्टर, आवर सेंटर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जी मैम, यहाँ पे आपको स्पीच, जे भी हियरिंग वाली है, ऑडियोमेट्री, पीटी, बेरा, ओई सब यहीं पे आपका हो जाएगा। हियरिंग एड भी आपको यहीं पे मिलेगा। पहले आप आओ, आपका हियरिंग के हिसाब से आपका थ्रेशोल्ड निकालेंगे, जिस हिसाब से आपका थ्रेशोल्ड है उस हिसाब से हम देखेंगे आपको हियरिंग एड की नीड है कि नहीं। अब आप दूसरे सेंटर पे जाओगे, ये नहीं बोलते कि सबका अलग है, बट हमारा यहीं पे सब कुछ आपको मिल जाएगा एक छत के नीचे। तो देखा आपने, यहाँ पे तमाम लोगों से मेरी बात हुई। हियर अगेन के बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे एक एक करके सभी से बात हो रही थी। यहाँ पे पूरी टीम से बात हुई है, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, अलग अलग प्लेसेस से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। सभी से एक एक करके मैंने बात की। एक ही छत के नीचे सारे इलाज मिल जाएंगे भाई साहब, यहाँ पे आइए ज़रूर। इनसे मेरी बात हुई है, आगे चल के फिर से आऊँगा। और किसी कोई समस्या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझसे पर्सनली जुड़ने के लिए आप फेसबुक के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उषित कांत, कैमरा पर्सन एंटीफिक के साथ। धन्यवाद।